شمالی کشیر ضلع بارہمولہ پٹن تپر کریری علاقس من ملٹنٹن تو سیکورٹی فورسز درمیان انکاؤنٹرس من 3 ملٹنٹ مار سپد مت آئی جی پی کشمیر وی کے بھردی سند طرف ون آمت زی جڑپ سپز رات کس تم وز شروع یل سیکورٹی فورسز ملٹنٹ موجودگی والا خاص اطلاع موصول سپز یم پت سیکورٹی فورسز طرف پور علاقہ گیرس من نین آو تو دونوں طرفوں سپود گولن ہند تبادلہ شروع تو گولن ہندس تبادلس من 3 ملٹنٹ مار سپد مت تاہم ون ملٹنٹن ہز شناخت سپز مز تو یہ ٲخری اطلاع واتنس تام تپر کریری علاقس مز آپریشن جاری سیکورٹی فورسز کو ٹاپر علاقے میں کچھ ٹیررسٹ موومنٹ کا اطلاع ملی تھی. جب اس علاقے کی جو سرچ چالو ہوئی تو اسی سمے اندر سے کافی شدید طور پہ گولہ باری کی گئی ٹیررسٹ دوارا. اس کے بعد یہاں ایک آپریشن کی شروعات ہوئی اور یہ آپریشن ابھی یہ کنٹینیوڈ ہے اور فورسز جو ہیں ٹارگیٹ سٹرکچر اور ٹارگیٹ ایریا کو پہ ابھی فوکس کر رہے ہیں. سر کتنے ملٹنٹ ابھی تک مارے گئے؟ ابھی کچھ باڈی سائٹ ہو رہی ہیں, ان کی تعداد میں ابھی اس کو واضح نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ آپریشنل جو پر اسرار کی باتیں ہوتی ہیں. جب یہ آپریشن مکمل ہو جائے گا تو آپ کو ان کی جو تعداد اور وہ ہے وہ ساجھا کر دی جائے گی. دیکھیے ٹیررسٹ تتو جو ہیں اس ٹائپ کے خلل واقع ڈالنے کی ہر دم کوشش کرتے ہیں, پر یہاں جموں کشمیر میں آرمی, سیکیورٹی فورسز, جموں کشمیر پولیس کافی وجیلنٹ اور الرٹ رہتی ہے اور ان کے اس ٹائپ کے جو منصوبے ہیں ان کو یہ خطہ چناب چھاترو کشتوارس مز اکس ملٹنٹ حملس دوران JCO ہیت فوجک 2 جوان مار سپد مت یل زن بیس زخمی ون ذرائع مطابق ون ز ملٹنٹو طرف آو فوج اکس گشتی پارٹی پہ حملہ کرنے یم کس نتیجس من 4 فوجی اہلکار زخمی سپدے. واقع پتہ تم نزدیکی ہسپتال واتنان آئے تت 2 اہلکار زخمن ہز دگ نوترن کن فوت سپد مت. یہ سیکورٹی فورسز طرف تلاشی کاروی تیز کرنے آمز تو ملٹنٹن ہز تلاش بڑس پیمانس پہ جاری. وزیر اعظم نریندر مودی سند طرف آز ڈوڈاس مز عوامی جلسس خطاب کران ون آمت زِ ین وول اسمبلی انتخابات کر جموں کشیر ہند مستقبل طے. تمو کانگریس, نیشنل کانفرنس تو PDP تنقید کران وونمت زِ یمو 3 خاندانوں جموں کشیر برباد کرمز. وزیر اعظم مودی سند طرف ون آمت زِ کانگریس کس دور حکومتس مز کانگریس داخلہ وزیر تہ لال چوک ین کھژان. تمو وون زِ BJP ین کور جموں کشیر مز امن امان قائم تو ملٹنسی آخری مرحلس مز وزمز. وزیر اعظمن وون زِ BJP سرکاری کر جموں کشیر ریاست درجہ بحال تو ترقی ہند نئی درواز ین نوجوان خاطر کھولنے یوت اخ خوشحال جموں کشیر قائم سپدے. जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है. आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया. इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया. यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की. उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया. जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही. इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में
नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। आप भी जानते हैं, यहां पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे। यहां बीडीसी के चुनाव कभी भी नहीं हुए थे। डीडीसी के चुनाव भी कभी नहीं हुए थे। दशकों तक यहां परिवारवाद ने यहां के बच्चों को, यहां के होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया। और इसलिए ही 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला सिंध तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सदिस परिवारवाद बयानस पे रद्दअमल ज़ाहिर करान वन आमुत जे ये विज बीजेपी जम्मू कश्मीर मज खानदानी पार्टियन हज जरूरत तम विज आसन तम तबाही हज जिम्मेदार तम वोन जे वज़ीर आज़म मोदी पजे मौजूद हालातन हवाले कत करें ये दोड़ा जडबे मज ज फौजी एहलकार हलाक सपद। उमर अब्दुल्ला वोन जे दफा 307 मनसूख सपदन सपद 5 वरी ताहम मिलिटेंट हमला लगातार जारी। उमर अब्दुल्ला सिंध तरफ डीएचपुरा कुलगामिस मज अकिस तकरीब दौरान इन कथन हज बावत करना आमज। उसके बाद हम बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी, तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीज़ों को बुलाया जाता है। वज़ीर आज़म साहब को इस चीज़ पे बात करनी चाहिए थी। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए हैं कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वज़ीर आज़म साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। सिर्फ मौजूदा हालात की बात करें, जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है, और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं ना। उम्मीद तो वही है ना, उम्मीद तो वही है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर पढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो पीडीपी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती बीजेपी से दोबारा इत्तेहाद किस उमर अब्दुल्ला सिंदिस बयानस पर रद्दअमल ज़ाहिर करान मुझे पीडीपी छन नेशनल कॉन्फ्रेंस पे दिल गसित रात किस बीजेपी से मुलाकात करान। तमो वोन जे पीडीपी पार्टी हुंद आस हुकूमत बनानस मज अहम रोल। महबूबा मुफ्ती वोन जे सो छन पान वज़ीर आला खतर उम्मीदवार, ताहम पार्टी मज कहिया सीनियर लीडर यम वज़ीर आला बनित हेकान। इल्तिजा मुफ्ती हवाल कत करान वोन तमो जे लुक यसान इल्तिजा मुफ्ती असेंबली वातनावेन। आपकी रिएक्शन? बीजेपी के साथ रात के अंधेरे में कौन मिलने जाता है दिल्ली? 2015 में अमित शाह के पास कौन बार बार गया कि हमारे साथ सरकार बनाओ, बिला शर्तों शुरू सरकार बनाओ? पीडीपी जो करती है खुल के करती है, हम छुप के कुछ नहीं करते। किंग मेकर का मतलब ये है कि महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनने की कैंडिडेट नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी में बहुत सीनियर लोग हैं जो किंग बनेंगे, जो वजीर आला बनेंगे और हम उनको बनाएंगे। ये उसका मकसद है और कोई मकसद नहीं। इल्तिजा के लिए आज आप वोट मांग रहे हैं, तो क्या उम्मीद लगाए बैठे आप? इंशाल्लाह इल्तिजा ने 2019 के बाद यहाँ के लोगों की आवाज़ बुलंद रखी,
यहाँ जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाई, लोग उसको समझते हैं और लोग चाहते हैं कि इल्तिजा जो है असेंबली में पहुंचे। कांग्रेस पार्टी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेर सिंह तरफ आज श्रीनगर मं प्रेस कॉन्फ्रेंस करान वन आमुत जे पत्मो 10 वरियो पे जम्मू कशीर अंदर दुरजन नाल वोलमुत तमो वोन जे जम्मू कशीर बेरोजगारी हंदिस मामलस मं मुल्कस अंदर दोयमिस नंबरस पे वसमज यम किन नौजवान मुश्किलन मं हेन आमद। सुप्रिया श्रीनेर सिंह तरफ वन आमुत जे जम्मू कशीर हिंद लुक वन ते बिजली सड़क तो आब हवाल परेशान ताहम छन सरकार अत कुन कह ते जोन दिवान। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हर चीज का दाम बढ़ा है, बाकी देश में भी बढ़ा है, लेकिन आपके लिए वो दिक्कतें और ज्यादा हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस देश में दूसरे नंबर पर आपकी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी और महंगाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा लीथल होता है और उसके चलते आपको जो दिक्कतें हुई है उसके बारे में मैं अगले 5-10 मिनट में जरूर बात करूंगी। पानी की किल्लत, महंगी बिजली, 65%, 65% of government jobs are lying vacant and there is no plan to fill these government jobs. बेरोजगारी सबको पता है और उसके बाद 65% गवर्नमेंट जॉब्स खाली क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ एलजी और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका दे सकते हैं। क्या चीजें सुधर गई उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए थे शांति के, अमन के, चैन के। यह अलग बात है कि जब 2024 का चुनाव आया तो जो शांति, अमन, चैन के बारे में अपनी ही डींगे हाँकते थे वो ना श्रीनगर लड़ने लायक थे, ना अनंतनाग राजौरी लड़ने लायक थे, ना बारामूला लड़ने लायक थे, तो वो सब रण छोड़ के भाग गए। द रियलिटी इज दैट ऑल ऑफ दीज पीपल who were speaking about peace in the valley and in Jammu, they did not have the face to contest an election in Anantnag, Rajouri or Srinagar or Baramulla for that matter. The reality is that Jammu and Kashmir has reeled under high prices, rampant unemployment, rampant corruption, water shortage, very, very high electricity costs, huge electricity cuts. Even the private sector, if you look at the job creation by the private sector and the value addition, it is lower than levels of 2019. 2019 में प्राइवेट सेक्टर यहां पर निवेश ज्यादा कर रहा था और वैल्यू एडिशन ज्यादा कर रहा था। आज 65% सरकारी नौकरियां भी खाली हैं और प्राइवेट सेक्टर का निवेश और प्राइवेट सेक्टर का वैल्यू एडिशन भी निरंतर गिरता गया, आज 2019 के लेवल से नीचे है। स्कैम, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें स्कैम नहीं हुआ है? माइनिंग स्कैम, लिकर स्कैम, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज में स्कैम हुआ है। और हर चीज में स्कैम का सबसे बड़ा पहलू यह है कि आपके हक को लेकर दूसरे के हक को दे दिया गया है। सबसे बड़ा पहलू यह है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में यहां के लोगों का जो भागीदारी है, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन माइनिंग, इन लिकर, इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैज गॉन डाउन। और असलियत यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं बात शुरू करती हूं, ज्यादा डिटेल में अब बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट में, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है, जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट बाकी देश के एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट का डबल है। द अनएम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर इज ट्वाइस दैट ऑफ द नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट। The unemployment in the age group of 15 to 29 years, आप में से यहां पर बहुत सारे युवा साथी हैं और आप जानते हैं कि 15 से 29 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भयावह होता है, वो 30% के आसपास है। महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट, I see some women sitting here, there are two of us here on the stage, forget about 28.6% for youth, 48.6%, almost 50% unemployment. नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर तो मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला मेहदी सिंह तरफ वन आमुत जे यथ असेंबली इलेक्शनस मज पज लूकन सोचित समझित वोट त्रावन। तमो PDP कुन इशार करान वोनमुत जे 2014 मज BJP हुकूमत निश दूर थाने बाबत लुकन निश वोट हासिल करना आई, ताहम पता आई BJP से हुकूमत बनाना। मेंबर पार्लियामेंट सिंह तरफ वाजह करना आमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस कर कुन त सूरतस मज BJP इतिहाद। आगा रूहुल्ला मेहदी सिंह तरफ राजपुरा पुलवामिस मज अकिस तकरीब दौरान यमन कथन बावत करना आमज। इन जमातों ने जो 2014 में भी यही बातें कही ना
कि वोट दीजिए हम बीजेपी को बाहर रखेंगे। फिर हुआ क्या, उसके बरक्स हुआ। और हालिया इलेक्शन ही जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में और उस इलेक्शन से पहले इन्हीं जमातों में से बहुत सारी जमातें थी जो कसम खाती थी बीजेपी के साथ इलाक़ की, फख्र करती थी बीजेपी के साथ इलाक़ की या उनके साथ रिश्ते होने की। तो इस वक्त इस तरह की गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ऐसी जमातों के उन बातों पे एतमाद किया जाए। ये पैदावार ही है बीजेपी की या मरकज की उन ताकतों की जो चाहती है कि यहाँ पे वो तकसीम हो। तो जम्मू कश्मीर की आवाम को ये देखना है इस वक्त कि बीजेपी के साथ अगर मुकाबला करना है, किन जमातों से दूर रहना है। इलेक्शन के लिए बहुत बड़ा कॉज होना चाहिए, और खास तौर पर इस वक्त के इलेक्शन के लिए जो हमारी वजूद का जंग है, हमारे मुस्तकबिल का जंग है, हमारा वजूद और मुस्तकबिल का तयन इसी इलेक्शन से होगा। तो एक फर्द के जेल से बड़ा है ये इलेक्शन, तो मौजू और हदफ उससे बड़ा होना चाहिए। तो नैरेटिव लेके जाए लोगों के सामने, लोगों को खुद देखना है कि उन्हें किस चीज के लिए वोट देना है। आवाम पे कितनी जिम्मेदारी है? मैंने अभी कहा, फिर से वही बात दोहराऊंगा, अगर इस इलेक्शन में हमने कोई कोताही की, इसके नतीजे बहुत दूर रस होंगे, मुस्तकबिल पे पड़ेंगे। तो बहुत ही मोहतात तरीके से आवाम को इस इलेक्शन को लेना पड़ेगा, बड़ी जिम्मेवारी है। अगर ये एतमाद मिलता है वोट की सूरत में और मेजॉरिटी मिलती है, इस वोट की, इस मैंडेट की, इस एतमाद की कदर करनी पड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अगर हम चाहते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हिंद यूथ इंचार्ज तो हल्का इंतखाब पुलवाम पे PDP के उम्मीदवार वहीदुर्रहमान पर्रा सिंध तरफ आवाज पुलवाम मेगा फ्रूट मंडी हूं दौर करने यह दौरान तमो तत फ्रूटस सत वाबस्त कशकारन सत बात कर। अत मौके पे तमो कशकारन हिंद मसल मसाइल बूझ तत तमो कत करान वोनमुत जे पत्मियों कहिया वरियो पे मेव सनत नजरअंदाज करने वहीदुर्रहमान पर्रा सिंध तरफ यकीन दहनी कर आमद जे हरगाह PDP पार्टी इक़्तिदारस मज आय मेव सनतस पोचर दिन हवालियन संजीद कदम तुलने युथ कशकारन राहत वात। सबसे बड़ा मसला जो पुलवामा में है, एक तो हम शुरू से कह रहे हैं कि ये मेन टाउन पुलवामा डेवलपमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज हुआ है, और क्योंकि ये फेस है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और पुलवामा में चाहे हेल्थ केयर की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, काफ़ी खस्ता हालत है हमारे हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, इंस्टीट्यूशंस की। और फ्रूट मंडी पुलवामा सबसे ज़्यादा एप्पल की प्रोडक्शन यहाँ से होती है। एक तो हमारे ग्रोवर्स में सबसे बड़ा जो स्ट्रेस इस वक्त है वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी स्लैश डाउन हुई है, तो हम चाहते हैं कि सेब पर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगे जो भी बाहर से सेब आता है, और ताकि यहाँ का सेब बाहर जाए, बल्कि ईरान से, US से यहाँ पर सेब ना आए, क्योंकि उससे हमारी जो सनत है पूरी ख़त्म हो रही है। दूसरा, पेस्टिसाइड्स जो है, स्पीरियस पेस्टिसाइड्स, जो ख़राब पेस्टिसाइड सप्लाई होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पूरे क्रॉप को। और थर्ड बड़ा इशू है यहाँ पुलवामा में कि अलॉटमेंट इश्यूज़ है, मंडी का एक्सपेंशन का इशू है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टोर बनने वाले थे वो नहीं बने। तो हमने ग्रोवर्स के साथ बात करके एश्योर किया कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम इन सब मसलों पे काम करेंगे और उसको वॉर फुटिंग पे उठाएंगे, ताकि ये जो एक बैकबोन इकॉनमी है जम्मू कश्मीर की, ये चलती रहे और इसको और ज़्यादा अपलिफ्टमेंट करने की ज़रूरत है। और जितना भी हमसे कोशिश होगी इस सनत को, चाहे हाई डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट मुफ्ती साहब ने लाया था उसको रिवाइव करेंगे, उसके साथ साथ इसको साइंटिफिकली। हल्का इंतखाब जेडबल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी उम्मीदवार तनवीर सादिक सिंध तरफ आवाज धोबी घाट तो जेडबल किन दोयमन इलाकों हूं दौर करने यह दौरान तमो तत घर घर मुहिम चलो। अत मौके पे तमो लुकन हंद मसल मसाइल बूझ तत तमो वोनमुत जे लुक वन ति बुनियादी सहूलत नश महरूम। तनवीर सादिक सिंध तरफ वन आमुत जे हरगस इक़्तिदारस मज आव सह कर लुकन हंद मसल हल करने कोशिश। है हम उसको टूरिस्ट विलेज बनाएंगे। ये जो लेक्स एंड वाटर्स, ये लाउडा वाला इलाका, इसको इससे ये हम लेकर, क्योंकि देखिए जब तक आप डल के लोगों को या ये जो आसपास के लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं होने वाला। मशीनों से आप उसको साफ नहीं कर सकते। इसमें उसको कहते हैं हमतुल, जो नीचे से उठाकर रूट से जड़ से उखाड़ता है। ये तभी होगा जब आप लोगों को इन्वॉल्व करोगे। बहुत अच्छा है, ये दरगाह का इलाका है। अब आप देखिए कि कितना प्यार और मोहब्बत मिल रहा है हर किसी लोगों से, बट इनके जो मसाइल है वो इतने ज़्यादा हैं कि खुद इंसान सोचता है कि आज तक इनके मसाइल हल क्यों नहीं हुए। दुकानों के जो रास्ते पे जिन लोगों ने अपने वो रखे हैं स्टॉल्स, इनको दुकान होने चाहिए। इस एरिया के करता धरता हैं,
इनको होना चाहिए। अब कोशिश करेंगे ऊपर वाले की दुआ से और इन लोगों के वोट से, अगर मैं कामयाब हुआ तो कोशिश करेंगे कि इनको एक स्ट्रक्चर्ड कुछ हम ऐसा कुछ करें ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, दुकान मिले, जो रास्ते पे हैं उनको कहीं ना तो कहीं अपना रोजगार, कोई नौकरी नहीं मांगता है, कोई ये नहीं कहता कि मुझे नौकरी दे दो, वो कहते हैं कि अगर हम अपना हक करते हैं तो हमें कुछ उसका फायदा होना चाहिए। 10 साल से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में नहीं थी, बट जो एलजी हुकूमत है उनने तो बिल्कुल इग्नोर किया। कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सके, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह हुकूमत में आती है, सब लोगों को हल्का इंतखाब त्रालस खतर अवामी इत्तेहाद पार्टी नामजद उम्मीदवार डॉक्टर हरबख्श सिंह सद तरफ आवाज त्राल किन कहियान इलाकों हूं दौर करने अथ दौरान तमो लुकन सत कत बात कर। अत मौके पे तमो लुकन हिमायत दनच अपील कर तथ तमो वोनमुत जे रिवायती सियासी जमूचों तरफ त्राल इलाक नजरअंदाज करना आमुद। तमो वोन जे AIP पार्टी हंद सरबरा इंजीनियर रशीद करन पगह त्रालुक दौर तो उम्मीद छे तकरीबन करन लुकन खास तादाद शिरकत। दूर दराज इलाके जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे सतूरा साइड में है, चाहे कारामुला साइड में है, हमारे जितने भी पहाड़ी बस्तियां हैं उन सब का मैंने दौरा किया और 1-2 सरदार गांव का दौरा किया। तो मुझे उम्मीद है जिस तरह से लोगों को मैं मिलता हूं या लोगों को एक वलवला है, लोग इस बार अच्छी पोलिंग परसेंटेज भी होगी और लोग इस वक्त चेंज चाहते हैं। उनको लगता है कि हमें त्राल में चेंज करनी चाहिए, जो इतने सालों का खानदानी राज यहाँ चल रहा था या जिस तरह से नेगलेक्टेड लॉट है ये ट्राइबल वाले भी या बाकी जगहों पे, तो वो एक चेंज चाहते हैं और इंशाल्लाह आई होप कि त्राल में ज़रूर एक चेंज आएगी। हाँ, मैं सारे लोगों को अपील करता हूँ, जितने भी AIP के सपोर्टर हैं या कुछ लोग जो फैन फॉलोइंग है, क्योंकि जिस दिन मैंने शुरुआत की यहाँ से अपनी कैंपेनिंग की, पहले दिन से अब तक जहाँ भी जाता हूँ तो सारे कहते हैं इंजीनियर साहब कब आ रहे हैं, इंजीनियर साहब कब आ रहे हैं। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इंजीनियर साहब का, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि टाइम बहुत उनके पास कम है, फिर दोबारा 2 तारीख तक उनकी ज़मानत है, लेकिन कल का उन्होंने वादा किया वो कल त्राल आएंगे इंशाल्लाह। हम उनको 2 बजे रिसीव करेंगे अवंतीपुरा में, उसके बाद डायरेक्ट त्राल लेके आएंगे और त्राल में एक बड़ी रैली होगी, बहुत बड़ा एक जन सैलाब होगा, जैसे आपने अबरार साहब का रोड शो देखा। और वापसी पे हम वाया डारसर और नूरपुरा वो वापस जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइम बहुत कम दिया है और इंजीनियर रशीद साहब का भी टाइट शेड्यूल है। मैं लोगों से माफ़ी मांगता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं, माफ़ी इसलिए कि वो हर जगह जिस तरह से हमने एक प्लान किया था कि सतूरा पहुंचेंगे, कहलील पहुंचेंगे, नागबल पहुंचेंगे और यहाँ पिंगलिश और रटसुन को टच करते हुए हायना रेशपुरा वगैरह, तो यहाँ से निकलेंगे या हरी ये लड़यार है, अमलड़ है, उधर से बाहर जाएंगे। जो पोर्शन हमें परसों रह गया था अबरार साहब की रैली में, तो वो हमने कवर करना था, लेकिन हालात को देखना पड़ता है, गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लास्ट डे है कैंपेनिंग का, तो हमें कोई 3-4 घंटे का टाइम मिला है, तो उन 4 घंटों में हम ज़िला इंतजामिया तो यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स तरफ हायर सेकेंडरी स्कूल नगरी कुपवारिस मज वॉलीबॉल टूर्नामेंट सज कर आमुत, यथ मज मुख्तलिफ जिले क्यों 3 टीमों शिरकत कर। आज आय टूर्नामेंट फाइनल मुकाबला कुपवारिस तो अनंतनागस दरमियान गिंदने, ये कुपवार टीम फाइनल मैच पन्निस नाव स्कोर। अत मौके पे ADC कुपवारा महमूद रहमान, CEO कुपवारा अब्दुल मजीद तो यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकमे दोम अफसर थे मौजूद। जन अत मौके पे गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंद साहिल शमीम थे इनाम। देखिए, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नगरी मलपुरा के अहाते में पिछले 10 दिन से एक टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर कश्मीर वैली इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट चल रहा था। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कुपवारा और यहाँ स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से एक बड़ा मैदान है जहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट बना। और आज कुपवारा और अनंतनाग में एक मुकाबला बराह रास्त लगा, जो कि 5 मैचों पे मुश्तमिल था, 5 सेट्स पे। तो 3 कुपवारा ने जीते और अपनी जीत दर्ज की। तो वी कंग्रेचुलेट द डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सपोर्ट्स अफसर, द पीपल ऑफ कुपवारा एंड द पार्टिसिपेंट्स एंड द कैप्टन ऑफ द टीम हु रजिस्टर्ड देयर विक्ट्री। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्रालस मज आवाज स्वीप प्रोग्रामस तहत शजरकारी मुहिम सज कर, यथ ADC त्राल साजिद नक्काश तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आई। तकरीब दौरान आए
फर्स्ट टाइम वोटरन वोटच अहमियत हवाले जानकारी दिन तो नयन वोटरन पे जोर दिन तम गसन सही पट पे वोटुक इस्तेमाल करें। अत मौके पे स्कूल प्रिंसिपल तो तालिब इलम ते तकरीब मज मौजूद। जो प्लांटेशन ड्राइव आज है बेसिकली ये जो पोलिंग स्टेशन है ये ग्रीन पोलिंग स्टेशन इज़ ए यूनिक पोलिंग स्टेशन। तो इस पोलिंग स्टेशन में हमने आज यहाँ प्लांटेशन की जस्ट इन ऑर्डर टू गिव एन मैसेज दैट वी आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पौधों का लगाना इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमने इन्वॉल्व किया था इस स्कूल के बच्चों को भी और प्रिंसिपल साहिबा भी यहाँ पे थी। तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस ड्राइव एंड इट विल बी continuous drive for all these polling stations. Almost 10-15 these plants will be planted in every polling station in order to give a message to everybody that the environment is very important. तो नाज़रीन कोशिश खबरनामा इतना सयान 7 बजे सब्द वे मुलाकात। फिलहाल दी इजाज़त, खुदा सवाल।